Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Sarvita. जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिंकेज। As the name is indicating, link means we are talking about genes which are linked together. So the phenomenon is called as linkage. So what is linkage? When two or more characters of parents are transmitted to the offsprings of few generations, such as F2, F3, F4, without any recombination, means without any change. They are called as linked characters, and the phenomenon is called as linkage. This is a deviation from the Mendelian principle of independent assortment, जो हम लोगों ने पढ़ा क्लासरूम में कि what is independent assortment according to Mendel, when the characters carrying from parents, means dominating parents or recessive parents, they may independently assort in F2 generation. If we cross between F1 hybrid, self-cross between F1 hybrid, the characters independently assort, means dominating character may go with the recessive character and recessive character may go with the dominating character carrying alleles. It means this linkage phenomenon do not follow the principle of independent assortment as given by Mendel. तो बेसिक आपको समझ में आया कि जो बहुत सारे दो या दो से ज्यादा करेक्टर्स जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट किए जाते हैं वो बहुत सारी जेनरेशंस तक सिमिलर चले जाते हैं। जो पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं आइदर डोमिनेटिंग और रिसेसिव, दे गो टुगेदर इन सेवरल जेनरेशंस। So this is called as linked characters. Mendel's law of independent assortment is applicable to the genes that are situated in separate chromosome, means genes carrying the character present separately on separate chromosome. When genes for different characters are located in the same chromosome, they are tied with one another and said to be linked. जब अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, सो दे आर नॉन लिंक्ड जीन्स। लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पे वो जीन्स पास पास लोकेटेड हैं और साथ साथ ही ट्रांसमिट होती हैं, ऐसी जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। And the characters are called linked characters. They are inherited together
by offsprings and will not be assorted independently, right? अलग अलग वो independently assort नहीं होते. Thus, the tendency of 2 or more genes of the same chromosome tend to remain together, साथ साथ रहने की कोशिश करती हैं अगली जनरेशन में, in the process of inheritance is called as linkage. Okay, now 2 theories or 2 phases behind the linkage described. These are based on the genes involved, depending on whether all dominant or some dominant and some recessive alleles are linked together. Linkage can be categorized into coupling phase linkage and repulsion phase linkage. So what is coupling and repulsion? As the name is indicating, हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, कपलिंग समझते हैं साथ साथ रहना, और रिपल्शन एक दूसरे से रिपल करना, एक दूसरे से अलग होना. तो ये 2 phases में based on the genes involved है. If we talk about the coupling phase, dominant alleles present on the same chromosome and recessive alleles present on the same chromosome show coupling phase. मतलब अगर डोमिनेटिंग जीन सेम क्रोमोसोम्स पे हैं तो ये कपल होंगी, जैसे टीआर सेम क्रोमोसोम पे है, होमोलॉगी में भी, सो दिस इज डोमिनेंट होमोलोगस एंड दिस इज रिसेसिव होमोलोगस. दे आर इन कपलिंग फेज. ये जब भी आगे अगली जनरेशंस में इनहेरिट होंगी, दे टेंड टू गो टुगेदर, यानी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जाएगा और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड कपलिंग फेज. What repulsion phase suggests? Dominant alleles of some genes which are linked with recessive alleles or other gene on the same chromosome show repulsion phase. जैसे यहाँ शो किया गया है, कैपिटल टी आर के साथ स्मॉल आर के साथ लिंक्ड है और स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ लिंक्ड है, मीन्स वन डोमिनेटिंग linked with one recessive and one recessive linked with one dominating gene allele, then these tend to remain separate. मतलब स्मॉल आर हमेशा टी के साथ जाएगा, एक तरह से वो कपलिंग शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ नहीं जाएगा, मतलब वो रिपल्शन शो कर रहा है. अगर पेरेंट्स में ये रिपल्शन फेज में है तो ये ऑफस्प्रिंग्स में भी रिपल्शन फेज में जाएंगे, यानी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर नहीं जाएगा और स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ नहीं जाएगा. तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दे आर कैरिंग इन ऑफस्प्रिंग्स टुगेदर, यानी ये लिंक्ड हैं, इसलिए स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ रिपल करेगा, तो ये रिपल्शन फेज है. तो इस तरह से 2, कपलिंग एंड रिपल्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर लिंक्ड है, स्मॉल टी स्मॉल आर लिंक्ड है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर से लिंक्ड है, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल आर से लिंक्ड है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपेल करेंगे. तो कपलिंग में साथ साथ जाना, और अगर दूर दूर से आ रही है पेरेंट्स में तो ये ऑफस्प्रिंग में भी tend to remain together. Now, about this, Butterson and Punnett, 1906. While working with sweet pea पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, Lathyrus odoratus observed that flower color and pollen shape tend to remain together. यानी ये जो 2 characters हैं, they are present on the same chromosome, flower color and pollen shape. They tend to remain together and do not assort independently according to Mendel's law of independent assortment. तो ये उसके according independently assort नहीं होते और साथ साथ ही जाते हैं. Right? Now, when 2 different varieties of sweet pea, one having red flowers and round pollen grain, and other having blue flower and long pollen grain were crossed,
The F1 generation were blue flowered with long pollen. It is dominating character. Blue long character were respectively dominant over the red and brown. तो ये dominating character साथ साथ रही. When क्योंकि हाइब्रिड मिलता है हम लोगों को F1 में, तो हमें वही करेक्टर जो डोमिनेटिंग होगा वो फिनोटिपिकली अपीयर होगा. When these blue flower with long pollen means heterozygous hybrid per self crossed with double recessive red and brown means homozygous individual. I'm sorry, when we make the test cross means when these blue long heterozygous hybrid crossed with double recessive red and brown homozygous individuals, they fail to produce 1:1:1:1 ratio. है ना, तो वो 1:1 रेशियो यानी 25-25-25-25 में नहीं होता. F2 generation में these actually produce following 4 combinations in the ratio of 7:1:1:7. ये 1:1:1:1 क्या हुआ जब हम टेस्ट क्रॉस रेशियो बनाते हैं तो 4:4:4:4 यानी आउट ऑफ 16 सब 4 तरह के हमको मिलते हैं टेस्ट क्रॉस में, तो हम इसको 1:1:1:1 लिखते हैं. लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस मीन्स आउट ऑफ 16 जो रेशियो हमको मिला वो था 7:1:1:7. कैसे मिला? 7 blue flowers with long pollen यानी ये dominating parental type है. 1 blue flowers with round pollen means this is hybrid. Then 1 red flower with long pollen, this is also hybrid, and 7 red flowers with round pollen grains, this is homozygous recessive or recessive parental type. You can say that this is 7 blue long and 7 red round are parental types. इसका मतलब parental type ज्यादा मिलना ये शो करता है जो पेरेंट्स से जीन्स आ रही हैं वो ज्यादा रेशियो में ऑफ स्प्रिंग्स में F2 जनरेशन में हमको मिलती हैं ड्यूरिंग मेकिंग द टेस्ट क्रॉस. ये शो करता है कि ये कपलिंग हुआ, करेक्टर जो पेरेंट्स से आ रहा है वो टेंड टू रिमेन टुगेदर, वो करेक्टर साथ साथ रहने की कोशिश करता है. दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज कैरिंग द कपलिंग फेज. You can understand well by this diagram. Red flower, round pollen, this is homozygous recessive, small b, small b, small l, small l. यहाँ पर b जो कि डोमिनेटिंग ब्लू के लिए रिप्रेजेंट किया गया है तो उसका रिसेसिव स्मॉल b से रिप्रेजेंट है, और लॉन्ग पॉलन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, उसका रिसेसिव ट्रेट स्मॉल एल से रिप्रेजेंटेड है यहाँ. तो ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट. दीज आर पेरेंट्स, है ना, दीज आर डोमिनेंट पेरेंट एंड रिसेसिव पेरेंट. अब व्हेन वी मेक अ क्रॉस वी गेट हाइब्रिड is capital B, small b, capital L, small l in the F1 generation, that is blue flower and long pollen. If we make the test cross means between this hybrid and double recessive hybrid like recessive parent type, small b, small b, small l, small l. So when we make the test cross of hybrid and double recessive parent, we get these phenotypic ratios, blue with long just like this parental type, है ना, ये phenotypically blue flower long pollen, इसमें homozygous और heterozygous दोनों होगा. तो ये मिला हमको out of 16 7, and red and round this trait, red flower with round pollen may be homozygous recessive and hybrid, they are also in higher number, that is 7. It means parental characters tend to remain together with higher ratio, higher number in F2 generation, shows the coupling phenomenon. Means coupling phases occurring, the characters carried from the parents tend to remain together in higher number, shows the coupling linkage phenomenon. Means they couple together and linked in the following generations. तो जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, that is written over here. The above results of this test cross clearly indicates that the parents combination, blue flowers with long and red flowers with round,
tend to remain together and are in more number 7 times as compared to the non-parental. ये non-parental combination हुए क्योंकि blue round के साथ parents में नहीं है, red long के साथ parents में नहीं है, तो इनको हम non-parental type कहते हैं, और जो higher number में मिल रहे हैं वो parental type कहलाते हैं. Bateson and Panner suggested that genes such as B and L coming from the same parent tend to enter the same gametes. जब इनके gametes बनेंगे, है ना, जब इनके gametes बनेंगे तो वो यहाँ पर gametes में साथ साथ चले जाएंगे, यहाँ पर small b small l के साथ, capital B capital L के साथ. और जब F1 generation के gametes बनेंगे तब भी यही phenomenon work करेगा, यानी यहाँ पर capital B capital L के साथ गया और स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ गया, तभी ब्लू एंड लॉन्ग हमें ज्यादा और रेड एंड राउंड ज्यादा मिले, मींस दीज आर द पेरेंटल टाइप. तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल बी गोज विद कैपिटल एल एंड स्मॉल बी गोज विद स्मॉल एल इन द गैमेट्स. सिमिलरली द जीन्स capital B and small l coming from two different parents tend to enter the different gamete. यानी यहाँ से B और यहाँ से L आ रहा है तो ये साथ साथ नहीं जाएगा, and to be inherited separately and independently showing the repulsion. तो अगर इसका opposite लिया जाए कपलिंग का तो repulsion कब होगा, जबकि कैपिटल B और कैपिटल L अलग अलग हो जाए, यानी repulsion शो करे. यानी पेरेंटल टाइप तब क्या होगा, कैपिटल B स्मॉल l, और दूसरा होगा स्मॉल बी कैपिटल एल, तब ये रिपल्शन शो करेंगे क्योंकि ये अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं और अलग अलग ही रहेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ वो रिपल्शन फिनोमेनन सजेस्ट करेगा. So this was about Bateson and Panner. Then in 1910, Morgan has also given his view. While working on Drosophila, Morgan stated that coupling and repulsion are two aspects of linkage, two phases or two aspects of linkage. Similarly, as Panner and Bateson suggest, he defined linkage as the tendency of genes present in the same chromosome to remain in their original combination and to enter together in the same gamete. The similar thing suggested by him कि लिंकेज में जो टेंडेंसी ऑफ जीन्स है जो साथ साथ क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम पे हैं, they are linked together and they have the tendency to go into the same gamete. अलग अलग नहीं जाती हैं जैसे हम लोगों ने बाकी क्रॉसेस में बनाया था, तो वो जब साथ साथ जाएंगी तो वो हायर रेशियो में हमको मिलेंगी. The genes located on the same chromosome are being inherited together, called as linked genes, and the characters controlled by these are known as linked characters. Their recombination frequency is always less than 50%. All those genes which are located in the single chromosome form one linkage group. Same chromosome पे हैं और linked together हैं तो कहते हैं वो one linkage group बनाती हैं. The total number of linkage group in an organism correspond to the number of chromosome pairs. है ना. अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लिंकेज ग्रुप कितना होता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम पेयर्स हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप्स इन मैन, यानी ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो एक क्रोमोसोम पे कम से कम एक लिंकेज ग्रुप होगा. इसी तरह 7 इन स्वीट पी, है ना, 7 होती हैं इसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 14 क्रोमोसोम होते हैं तो 7 कम से कम होंगे. एंड 4 इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. एज द नंबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, सिमिलरली शोइंग द लिंकेज ग्रुप. ओके. Now, features of theory of linkage. Morgan and Castle formulated the chromosome theory of linkage. They have given the chromosome theory of linkage. It has the following important features or salient features. The first is genes that show linkage are situated in the same chromosome. है ना, तभी वो linkage show करेंगी जब वो same chromosome पर closely present हो. Second, genes are arranged in a linear fashion in the chromosome. है ना, इट मीन्स लिंकेज इज लीनियर, वो लीनियर
Okay, the distance between the linked genes is inversely proportional to the strength of linkage, है ना? तो जो डिस्टेंस है लिंक जीन्स का वो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जीन्स जितनी पास होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी, जितनी दूर होंगी उतनी ही weak linkage होगी. The genes which are closely located show strong linkage, whereas those widely separated or distantly present, they are showing the weak linkage. तो ये अगला phenomenon है कि ये crossover में चली जाती हैं, crossing over phenomenon में, और हमें क्या मिलता है? हमें hybrids ज्यादा मिलते हैं या non-parental type ज्यादा मिलते हैं. Fourth is the linked genes remain in their original combination during course of inheritance. वो अपने original combination में अगर dominating genes साथ साथ present है तो वो next to next generation साथ साथ जाएंगी. The linked genes show two types of arrangement on the chromosome. If the dominant alleles of two or more pair of chromosomes, more pair of linked genes are present on the same or one chromosome, their recessive alleles of all of them on the other homologous chromosomes, like that capital A with capital B and small a with small b. This arrangement is known as cis arrangement, है ना? तो ये दो तरह का अरेंजमेंट शो करती है. पहला अरेंजमेंट कहलाता है cis arrangement. Right? So this is called as cis arrangement. However, if the dominant allele of one pair and recessive allele of the second pair are present on one chromosome and recessive and dominant alleles on the other chromosome of the homologous pair, like that capital A with small b and small a with capital B, this arrangement is called as trans arrangement. So two types of arrangement the linked genes show. You can see here. This is cis arrangement of genes. Cis arrangement of genes when capital A located with capital B on the same chromosome and linked together. Similarly, small a and small b on the other chromosome linked together. They tend to go in the same gamete because they are closely linked. And the other arrangement is called trans arrangement of the genes when capital A linked with a small b on the same chromosome, means one dominating and other recessive allele, and second recessive allele with dominant allele located on the different chromosome. This is called as trans arrangement of genes. So this is cis and trans arrangement of genes. You can make it as color wise also. अगर आप इसको और डिपिक्ट करना चाहते हैं तो सिस में कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी एक कलर से आपने शो कर दिया और दूसरा दूसरे कलर से शो कर दिया. तो ये इस तरह से भी आप इसको डिपिक्ट कर सकते हैं, सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. Now, in Drosophila, Morgan in 1911 crossed, जैसे हम लोगों ने स्वीट पी का क्रॉस बनाया था, just to depict that, the cross is made between two types of Drosophila, an ordinary wild type Drosophila, जिसमें करेक्टर होता है ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स का, है ना? ग्रे and long wings का character होता है, which is depicted by capital B and capital V, with another Drosophila which is called as mutant type with black body and vestigial wings. So black body and vestigial wings, इसी को B और V से डिपिक्ट किया गया है. तो इसके dominating character को capital B से डिपिक्ट किया गया है. It is having a small b, small b, small v, small v. All the hybrids in the F1 generation are with gray bodies and long wings. यानी हाइब्रिड मिलते हैं हमको जो कि जिसका जीनोटाइप कैसे डिपिक्ट हो रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, दैट इज फिनोटिपिकली लाइक द वाइल्ड टाइप. फिनोटिपिकली तो हमें वाइल्ड जैसे ही दिखाई देंगे, यानी हमें ग्रे बॉडी विद लॉन्ग विंग्स दिखाई देंगे. इफ नाउ अ मेल ऑफ, देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, इफ द मेल ऑफ
F1 generation, that is capital B, हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? Hybrid of F1 generation, capital B, small b, capital B, small b, like that, is back crossed with a double recessive. अब हम back cross कर रहे हैं double recessive female से, यानी जो हमने मेल लिया वो क्या लिया? हमने मेल हाइब्रिड लिया F1 जनरेशन का, और हम जो टेस्ट क्रॉस बना रहे हैं वो डबल रिसेसिव फीमेल से बना रहे हैं, मिस हैविंग द ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स विद जीनोटाइप स्मॉल b, small b, small b, small b, right? Now, what happens? F2 generation without the appearance of any new combination means जब हम पेरेंटल टाइप ये ले रहे हैं, यानी हम F1 जनरेशन का हाइब्रिड और रिसेसिव डबल रिसेसिव फीमेल ले रहे हैं, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड, यानी F2 में कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, यही मिला हमें 1:1 रेशियो में. The results indicate that gray body character is inherited together with long wings. यानी ये शो करता है, क्योंकि हमें मिलने चाहिए थे कुछ नॉन पेरेंटल टाइप भी, लेकिन इसमें यहाँ ये शो करता है कि ये जो है ग्रे बॉडी, यानी हमारे पास बॉडी का कलर ग्रे है, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल बी मीन्स वेस्टिजियल विंग्स, लॉन्ग विंग्स, दे टेंड टू गो टुगेदर, और यहाँ पर अगर फीमेल में है तो ये साथ साथ जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स या नॉन पेरेंटल टाइप नहीं बनते. द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट ग्रे बॉडी कैरेक्टर्स इन इनहेरिटेड विद लॉन्ग विंग्स. इसका मतलब क्या हुआ? ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर अगर मेल में है तो ये साथ साथ इनहेरिट होता है. Now, it implies that these genes are linked together. Similarly, black body character is associated with vestigial wings since only parental combination of characters appear in the offsprings of F2 generation and no new or non-parental combination appear. This shows कि अगर हम मेल पेरेंट ले रहे हैं और वो शो करता है कि कैरेक्टर साथ साथ जा रहे हैं, तो ये कंप्लीट लिंकेज का फेनोमेनन शो करता है ड्रोसोफिला के मेल्स में. ये बहुत टिपिकल है ना? तो एक तरह से लिंकेज के टाइप्स को डिस्क्राइब करता है ये कि ड्रोसोफिला अगर मेल है और वो कैरेक्टर साथ साथ कैरी हो रहे हैं, कैपिटल बी मीन्स ग्रे बॉडी विद लॉन्ग विंग्स, दे गो टुगेदर, और हमें बिल्कुल नॉन पेरेंटल टाइप नहीं मिलता. इसके बेस पे मॉर्गन की सजेशन के बेस पे टाइप्स ऑफ लिंकेज को डिस्क्राइब किया गया डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस, यानी हाइब्रिड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या नॉन पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशंस. लिंकेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 types. First is called as complete linkage. If 2 or more characters are inherited together and consistently appear in 2 or more subsequent generations in their original और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ लिखी गई हैं, कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज. यानी अगर वो करेक्टर्स कंप्लीटली विदाउट एनी नॉन पेरेंटल टाइप हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेवरल जनरेशन तक मिलते जाते हैं, तब हम इसको कंप्लीट लिंकेज कहते हैं. जो भी हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्क्राइब किया, अभी मैं आपको फिगरिस्टिकली भी दिखाती हूँ. जीन्स शोइंग कंप्लीट लिंकेज आर क्लोजली लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम. Genes for gray body and long wings in male Drosophila. हम लोग बार बार मेल ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल इसके लिए ले रहे हैं कि मेल ड्रोसोफिला में अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो ये साथ साथ शो होते हैं और कंप्लीट लिंकेज देते हैं, यानी इसमें नॉन पेरेंटल टाइप नहीं मिलता. जैसे हमने स्वीट पी में पढ़ा था, तो स्वीट पी में क्या था? 7:1:1:7. तो 1:1 जो था वो नॉन पेरेंटल टाइप था, तो वो कंप्लीट लिंकेज नहीं थी. लेकिन यहाँ ये कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है मेल ड्रोसोफिला में. इनकम्प्लीट लिंकेज इज द सेकेंड टाइप ऑफ लिंकेज.
incomplete linkage is exhibited by those genes which produce some percentage of non-parental type. जो मैंने अभी आपको बताया कुछ percentage non-parental type की जरूर होगी. Such genes are located distantly. वो इतनी दूर हैं कि accidentally टूट सकती हैं या crossover में जा सकती हैं. It is due to accidental or occasional breakage of chromosomal segments during crossing over. तो जब crossing over होती है तो non-parental type मिलते हैं, लेकिन ऐसे केस में मेल ड्रोसोफिला में हमें पेरेंटल टाइप मिलते हैं अगर हम एक मेल ड्रोसोफिला का कैरेक्टर मेल और फीमेल के साथ क्रॉस ओवर कराएं. अगर उसमें ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स हैं मेल में तो ये साथ साथ जाएंगे, है ना. लेकिन अगर इसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स तो साथ साथ नहीं जाएंगे. अगर मेल ड्रोसोफिला रिसेसिव कैरेक्टर का होगा तो हमें क्रॉसओवर मिलेंगे, लेकिन अगर ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर का होगा तो ये कैरेक्टर्स आगे जाएंगी. तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल आता है कि कंप्लीट लिंकेज किसमें पाई जाती है, मेल ड्रोसोफिला में विद डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स. ओके, ये इसको क्रॉस बना करके शो किया गया है. यू कैन सी ओवर हियर इफ वी टेक पेरेंट्स में वाइल्ड टाइप है और दिस इज शेवन और म्यूटेंट टाइप, है ना. तो इसमें जो कैरेक्टर्स शो किए गए हैं वो प्लस से शो किए गए हैं. हम लोग इसको कैपिटल बी और कैपिटल एल से भी शो कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स शो किए गए हैं प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये वाइल्ड टाइप यानी डोमिनेटिंग है, और प्लस का साइन नहीं है तो ये रिसेसिव म्यूटेंट टाइप है. तो जब इनके गैमेट्स फॉर्म होती हैं तो ये दोनों साथ साथ जाते हैं, है ना. सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, लेकिन हमें F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिलता है क्योंकि कॉम्बिनेशन होना ही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का. तो ये जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं इसमें ये वाइल्ड टाइप ही दिखाई देंगे, है ना. वाइल्ड टाइप का मतलब ग्रे विंग्स एंड लॉन्ग विंग्स. अगर हम अब इनके गैमेट्स को फॉर्म करते हैं तो इसमें अगर गैमेट्स, क्योंकि ये मेल ड्रोसोफिला इसको हम ट्रीट करें, है ना. इफ वी ट्रीट दिस एज ए मेल ड्रोसोफिला एंड क्रॉस्ड विद रिसेसिव टाइप, दिस इज ट्रीटेड एज फीमेल एंड दिस इज ट्रीटेड एज मेल विद वाइल्ड टाइप और डोमिनेटिंग कैरेक्टर. तो जब हम इसको इस तरह से क्रॉस बनाए, बैक क्रॉस जैसे कहते हैं, तो इसमें बस 2 ही मिलती हैं इंस्टेड ऑफ 4. 1:1:1:1 की जगह हमें यहाँ स्वीट पी में जैसे 7:1:1:7 मिला था, उसकी जगह हमें ये 1:1 यानी 50-50% बिल्कुल पेरेंटल टाइप मिलते हैं. यानी वाइल्ड टाइप फिनोटिपिकली हमें 50% मिलते हैं और रिसेसिव टाइप हमें वेस्टिजियल विंग्स 50% टाइप मिलते हैं. तो ये भी और पेरेंटल टाइप ही हो गया. लेकिन ये कब होगा, जब ये वाइल्ड जीन्स में मेल ड्रोसोफिला को हम ट्रीट करेंगे कि ये वाइल्ड जीन्स हैं, इनमें गैमेट्स एक ही तरह के फॉर्म होंगे. और अगर हम रिसेसिव टाइप लेंगे उसमें भी एक तरह के गैमेट्स ही फॉर्म होंगे. तो ये कंप्लीट लिंकेज शो करता है मेल ड्रोसोफिला में. और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, जो बताया हम लोगों ने अभी स्टडी किया, तो मेज में एक एग्जाम्पल बहुत फ्रिक्वेंटली स्टडी किया जाता है कि मेज में जो दाने होते हैं मक्का के, जिसको आप लोग खाते हैं, उसमें कलर्ड विद फुल साइज फुल सीड्स यानी श्रंकन नहीं है, और कलरलेस या एल्बिनो कह सकते हैं, व्हाइट या उसमें येलो कलर डेवलप नहीं हुआ, और श्रंकन सीड्स, दिस इज रिसेसिव टाइप. इनके गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे F1 जनरेशन के लिए, और जब इनको क्रॉस करेंगे तो हमें हाइब्रिड मिलेगा, लेकिन फिनोटिपिकली ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स शो करेगा. अब अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं, तो सेल्फिंग करने पर इनके जो गैमेट्स फॉर्म होंगे उसमें CSH, और ये भी बन सकता है, ये 2 तरह के गैमेट्स फॉर्म हुए. सिमिलरली यहाँ पर क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इनके गैमेट्स में, जिसमें कैपिटल C स्मॉल SH के साथ और स्मॉल c कैपिटल SH के साथ जा सकता है श्रंकन सीड्स के साथ. अब यहाँ पर जो प्रोजेनी हमको मिलती है वो प्रोजेनी मिलनी चाहिए 1:1:1:1 या 25-25-25%. इंस्टेड हमको पेरेंटल टाइप मिलते हैं 96.4, जिसमें कलर्ड और फुल सीड्स वाले 48.2% और कलरलेस और श्रंकन सीड्स पेरेंटल टाइप वाले 48.2%.
और ये ओनली 1.8 और 1.8% मिलते हैं नॉन पेरेंटल टाइप। तो नॉन पेरेंटल टाइप मिला, भले ही 1.8% मिला, लेकिन ये शो करता है कि ये कंप्लीट लिंकेज नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। But non-parental types are very less than that of the parental type. Parental type 96.4% है और recombinant या non-parental type 3.6% है. So this is showing incomplete linkage. So what is the significance of linkage? क्योंकि ये कंप्लीट आंसर तभी होगा जबकि हम कोई भी फिनोमिनन का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस लिखें, है ना, तो हमें ये लिखना जरूरी होता है। तो फर्स्ट इज लिंकेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो ये बताता है लिंकेज फिनोमिनन कि इनमें जो प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टर्स के बेस पे उनमें हाइब्रिडाइजेशन कितने % संभव है, हमें कितनी इनकम्प्लीट लिंकेज है इसमें और कितना हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो हम ऐसे प्रोग्राम्स को सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि हम इन पौधों में कितनी हाइब्रिड्स बना सकते हैं या हाइब्रिड नहीं बनेंगे, या हमें सेल्फ लाइन सिलेक्शन करनी हो यानी सेम पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को कैरी करना हो, तो हम लिंकेज फिनोमिनन के बेस पर इसको स्टडी कर सकते हैं। सेकंड है लिंकेज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, रिकॉम्बिनेशन का चांस नहीं होता है जीन्स में, तो ये रिड्यूस करता है एंड दस हेल्प्स टू होल्ड पेरेंटल कैरेक्टर्स टुगेदर। तो अगर हम कुछ कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और वाइल्ड कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में थे, है ना, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है कि जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी का कैरेक्टर है किसी में, या जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है, और अगर वो लिंक्ड टुगेदर है प्रोडक्टिविटी और डिजीज रेजिस्टेंस, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम आगे से आगे जनरेशन में लेके जाएंगे ताकि हमें अच्छे प्रोडक्शन भी मिले, उपज भी अच्छी हो और उन पौधों में डिजीज भी कम हो। और अगर ऐसे कैरेक्टर्स लिंक टुगेदर हो तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो अप कर सकते हैं। इफ it does helps organism to maintain its parental, racial and other important characters. For this reason plants and animal breeders find it difficult to combine various characters, है ना। तो जो लिंक जीन्स होती हैं, और कभी कभी क्या होता है डिजीज कॉजिंग उसमें कैपेबिलिटी है या रिसेसिवनेस है, डिजीज के प्रति ससेप्टेबिलिटी है, और लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, तो हम ऐसे कैरेक्टर्स को साथ साथ जाएंगे ही वो, क्योंकि लिंकेज की वजह से वो कम लिंक्ड टुगेदर हैं और हम उनको अलग नहीं कर पाते। तो प्लांट ब्रीडर्स को या एनिमल ब्रीडर्स को डिफिकल्टी होती है ऐसे कैरेक्टर्स को सेपरेट करने में, बिकॉज दे आर क्लोजली लिंक्ड टुगेदर, दे आर कपल्ड टुगेदर। कितना भी कोशिश कर लें वो रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं बना पाते हैं। सो द वर्क इज गोइंग ऑन, इस पे रिसर्चेस चल रही हैं कि किस तरह से ऐसे कैरेक्टर्स को, जैसे पहले जो वीट की वैरायटी होती थी वो बहुत टॉल होती थी वैरायटी, लेकिन उपज कम थी, अब ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई हाइब्रिड से, क्योंकि वो लिंक्ड नहीं थे कैरेक्टर्स, तो टॉलनेस को रिड्यूस कर दिया गया और उपज ज्यादा हो गई। तो इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग में एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज अगेंस्ट द लिंकेज, है ना। तो वो लिंकेज नहीं होगा उन कैरेक्टर्स में, इसलिए उनको फॉलो अप किया जा सका। So you may take further reference of the books. You can take P.K. Gupta book, Genetics Classical to Modern, और another book, अब नई भी इनके publications आ गए हैं, Cytology, Genetics and Molecular Biology, रस्तोगी publication, मेरठ। Okay, so I think if you have any query, I have 1 minute, you can ask. Yes, Sabita? No, ma'am, no question. Okay, so this is important topic for examination. It may comes as a long answer question for 10 marks or maybe as a 5 marks question. So accordingly you will reduce the points. और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स जरूर लिखेंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड टाइप्स ऑफ लिंकेज जरूर देंगे एग्जाम्पल के साथ। विदाउट एग्जाम्पल इट इज नॉट कंप्लीट आंसर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो कंप्लीटली अप टू द सिग्निफिकेंस यू विल राइट, और अगर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो उसमें छोटा छोटा ही पूछा जाएगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज या और गिव एग्जांपल और सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, इस तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। ओके, जय हिंद। दिस इज ऑप्शनल पेपर ना? हाँ जी, दिस इज ऑप्शनल पेपर ना? हाँ, यस, दिस इज ऑप्शनल पेपर, राइट, यू आर राइट, एंड एमसीक्यू विल कम। तो ये सपोर्ट